Now, we have already read the poem. Now, let us do some new words. New words. Soaked. Soaked means completely wet. पूरी तरह से भीगा हुआ. Shower. Bath in which water is sprayed from the above. एक बाथरूम जिसमें ऊपर से स्प्रे किया जाता है पानी, that is shower. Wept, shed tears, cried. Shed tears, shed means गिराना, tears मतलब आंसू. आंसू गिराना या cried मतलब रोना. Wept मतलब रोया. You have to do some new words. You have to solve some new words. Hint I will be giving you. Lesson number 7, crying poem. First is crying, like frying. You have to rhyme the ending words rying, rying. Some ending words of the words given will be matching with each other and giving the similar sound. These words are called rhyming words, like bit, sit, hit, jump, pump, hump, 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 shower, flower, tower, throw, crow, draw, can, pan, man, say, day, hay, tear, dear, fear, wrapped, kept, accept, hiding, riding, finding, there, here, where, splash, flash, clash. So like this you have to fill the rhyming words. Let's do some exercise. According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? What the poet is saying, you have to answer. What the poet is saying? Poet is saying crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. This means the poet wants us to cry a lot. So the answer will be, according to the poet, we should cry a lot. What can you do after crying a lot? What the poet is saying? Poet is saying, then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Jump in the shower means take a bath. So, what we can do? We can take a bath after crying a lot. Read the first 2 lines of the poem. Is the mood. We have to find the mood of the poet. Either the poet is happy or sad or angry, jealous or upset. So, if we find the poet is talking about crying, first 2 lines, crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. We cry when we are sad or when we are upset. When we are upset, we don't cry. We cry when we are happy. We don't cry. Sad. जब हम उदास होते हैं तो cry करते हैं. And upset, jealous, angry. जब हम नाराज़ होते हैं तो हम रोते नहीं हैं, हम मुंह फुला लेते हैं. जेलस होते हैं तो भी हम रोते नहीं हैं. अपसेट होते हैं तो भी हम नहीं रोते. In the last few lines, in the mood of the poem has changed. What is it now? Last few lines देखेंगे. Here the poet is saying ha ha ha. Then again ha ha ha. He is saying ha ha ha. This means that the poet is happy. The mood of the poet is happy. So in the last few lines the mood of the poet has changed. What is it now? He is very happy and very cheerful. He is very happy because he says that happiness was hiding behind the last tear and I have wept it. So we can see the poet is. Then question number 4,
आर दीज सेंटेंसेज राइट और रॉन्ग, कि इनमें से सेंटेंस राइट या रॉन्ग हमें बताना है। द पोइट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच, कि आपको ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। पोइट क्या कहता है? यू डोंट क्राई मच, बट द पोएम सेज दैट यू शुड क्राई until your pillow is soaked. This means we have to cry a lot. So this sentence is wrong. The poet says that you should cry till your pillow is soaked. Yes, this is correct. The poet says that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. No, the poet says that after crying we should take a bath. This sentence is incorrect. The poet says that you should open the window and show people that you are crying. It's also wrong. He says that you should open the window and you should show that you are very happy. So this is also wrong. Next, here are some questions that you have to do it yourself. I am just going to explain you what you have to do. Where do you cry? आप कहाँ रोते हैं? What are the things that make you cry? कौन कौन सी बातें हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देती हैं या जिनके होने पर आप रोते हैं? आपको बताना है किन बातों से आप रोते हैं, किन बातों से आपको रोना आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आप ही बता सकते हैं आप कौन कौन सी बात में रोते हैं। कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी? क्या अगर आप बहुत खुश हैं तो क्या आप रो सकते हैं जब आप बहुत खुश हैं? ये आपको ही पता है कि खुशी में क्या आपको आंसू आते हैं। विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी? आप कौन कौन सी चीज़ों से खुश होते हैं। इन वट वेज़ डू यू शो योर हैप्पीनेस? और आप अपनी हैप्पीनेस कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे दूसरों को बताते हैं कि आप खुश हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं? जोर जोर से हंस करके या फिर किसी को पार्टी दे करके, किस तरह से आप अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते हैं? यू हैव टू राइट। नाउ से अलाउड। हियर आर सम वर्ड्स शो ऐसे साउंड यू हैव डन इन योर प्रीवियस चैप्टर। पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको श साउंड के बारे में बताया था और एक पोएम भी हम लोगों ने की थी। तो यहाँ पर श साउंड यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में। स्प्लैश, श के आगे ए जोड़कर ऐश, ऐश का साउंड आएगा। डैश, बैश, स्प्लैश, कैश, थ्रैश। देन स्टीयर, टीयर, डी क्लियर, डियर, ईयर। डबल ई आर एंड ई ए आर बोथ आर गिविंग द साउंड ऑफ ईयर। शावर, पावर, टावर, फ्लावर, ब्लावर, ब्लोअर। देन पोक्ड, croaked, soaked, stroked, joked, wept, kept, crept, leapt, slept। ठीक है, तो इनको आपको बार बार पढ़ के देखना है और इनके स्पेलिंग्स आप याद करेंगे। देन वर्ड बिल्डिंग मीन्स, वर्ड बिल्डिंग का मतलब ये है कि कुछ वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, लाइक हैप्पी, सैड, ये सब वर्ड्स आपको क्लास 1 से ही सिखाए गए हैं। तो जो हमें पुराने वर्ड्स आते हैं, हम उन वर्ड्स में कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है कि उन जो हमारे पुराने याद किए वर्ड्स हैं उनके आगे हम कुछ, उनके पीछे कुछ लेटर्स जोड़कर नया वर्ड बना लेते हैं। प्रीफिक्स का मतलब है उन्हीं शब्दों के आगे जोड़कर हम 2-3 लेटर जोड़कर एक नया वर्ड बना लेते हैं। देन हैप्पीनेस, यहाँ एक वर्ड गिवन है, आपकी पोएम में भी आया है हैप्पीनेस। द हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग बिहाइंड द लास्ट ईयर। सो द वर्ड हैप्पीनेस एंड्स इन NESS। ठीक है, NESS, बट द रूट वर्ड, इसका वैसे वर्ड क्या है? HAPPY, हैप्पी। उसके पीछे INESS जुड़ा है। NESS जोड़ने के लिए Y को I में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हैप्पीनेस, खुशी। ठीक है, हैप्पी मतलब खुश, हैप्पीनेस मतलब खुशी। खुश से खुशी बना दिया, दुख से दुखी बना दिया। साफ से सफाई बना दिया।
ठीक है, तो ऐसे वर्ड बनाने के लिए इंग्लिश में हैप्पी मतलब खुश, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, comes from the word happy. Write 3 words that end in the same way. Which words do they come from? ठीक है, यहाँ पर आपको नेस दिया हुआ है, तो आपको ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिनमें लास्ट में NESS आता है, लाइक ब्लाइंडनेस, काइंडनेस, क्लीनलीनेस। ठीक है, तो यहाँ तो हमने वर्ड्स लिखने हैं जिनमें NES जुड़ा है। यहाँ हमें लिखना है कि वो वर्ड किस वर्ड से बने हैं। लाइक इफ आई से सैडनेस, काइंडनेस, KINDNESS, काइंडनेस, CLEANLI, क्लीनलीनेस, ब्राइटनेस, BRIGHTNESS, ब्राइटनेस। तो यहाँ हमें लिखना है कि यहाँ ये वर्ड्स, जैसे हैप्पीनेस किससे बना, हैप्पी से, उसी तरह से काइंडनेस किससे बना है, काइंड से, KIND, काइंड। क्लीनलीनेस किससे बना है, क्लीन से, CLEAN, क्लीन। ब्राइटनेस किससे बना है, ब्राइट, bright. So you have to write like this. Now we are on page number 62. Let's write. Fill in the blanks with exact feeling words. Feeling means जिससे आपके मन के भाव प्रकट होते हैं। जैसे आप सांप देखेंगे तो आप फ्राइटन हो जाएंगे, डर जाएंगे। ठीक है, तो फ्राइटन होना दैट इज़ द फीलिंग। आप अगर अपना फेवरेट चीज़ अपने सामने देखते हैं जो आप चाहते थे और आपको मिल जाती है, देन यू विल बी वेरी हैप्पी। अगर आपकी कोई फेवरेट चीज़ खो जाती है, देन योर मूड विल बी सैड। So feeling of your heart, what do you feel at a particular situation or at a particular thing, at a particular time? So the tourists were dash to see the beautiful Taj Mahal. जो टूरिस्ट थे to see the beautiful Taj Mahal, सुंदर ताजमहल को देखने के लिए क्या होंगे वो, amazed। टूरिस्ट व डैश टू सी द, उन्होंने जब ब्यूटीफुल ताजमहल, सुंदर ताजमहल को देखा तो वो क्या थे, शॉक्ड थे, उनको शौक लगा, वरिड थे, दुखी थे, अमेज्ड थे, अचंभित थे, उसको देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने ताजमहल जैसी चीज़ पहले नहीं देखी थी, तो उसको देखकर उनको क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, अमेज्ड। द लाइट वेंट आउट सडनली, अचानक से बिजली चली गई। आई वॉज अलॉन, मैं बिल्कुल अकेला था। एंड डैश, जब आप लाइट चली जाए, किसी अंधेरी जगह पे अकेले रह जाएं तो क्या होंगे, आप हैप्पी नहीं होंगे, आप वरिड, आप दुखी नहीं होंगे, आपको शॉक नहीं लगेगा, आप क्या हो जाएंगे, फ्राइटेंड। जैसे कि रॉबिन्सन क्रूसो फ्राइटेंड हो गया था अकेले आइलैंड पर एक फुटप्रिंट देखकर। सो यू विल बी ऑल्सो फ्राइटेंड। ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो एक लंबे समय से बीमार था। एंड हिज पेरेंट्स वर, और उसके पेरेंट्स क्या होंगे, अगर कोई लंबे समय तक बीमार होगा तो आपके माता पिता क्या होंगे, खुश होंगे, नहीं, वरिड होंगे, परेशान होंगे, एंग्री होंगे, अनहैप्पी होंगे, वरिड होंगे। ठीक है, परेशान होंगे आपके माता पिता बहुत ज़्यादा आपकी बीमारी को देखकर। दे विल बी वेरी वरिड, उनको चिंता रहेगी आपकी, चिंतित थे, आपको बीमार देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। द शॉपकीपर वॉज डैश व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग। क्या होता है, किसी की दुकान में चोरी हो जाती है और वो वह दुकान में जाएगा तो क्या होगा, उसको अचानक से देखकर ताला टूटा हुआ है, सारा सामान चोरी हो गया, क्या लगेगा, वो अनहैप्पी होगा, उसे शॉक लगेगा,
या फिर वो एंग्री हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा तो वो नहीं होगा उसी समय, अनहैप्पी, दुखी तो वो क्या हो जाएगा, अचानक से जब कोई चीज़ देखेगा कि मेरी मिसिंग है तो शॉक्ड हो जाएगा कि अरे ये क्या हो गया। द शॉपकीपर वॉज शॉक्ड व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग। देखिए, जब किसी को शॉक लगता है तो वो ऐसा हो जाता है, जैसे बिजली का शॉक लगता है तो एकदम से कैसे होश उड़ जाते हैं, ठीक है। जब किसी का सामान गायब हो जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। होश उड़ने पर क्या लगता है, शॉक लगता है। कईयों को हार्ट अटैक भी आ जाता है शॉक लगने से। नरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज। आपको कोई भी अपनी लाइफ का इंसिडेंट आपको एक्सप्लेन करना है जब आपको हैप्पीनेस महसूस हुई, खुशी महसूस हुई हो, एक्साइटमेंट महसूस हुआ हो, जब आप बहुत उत्साहित आपने महसूस किया हो, सरप्राइज़ और बहुत आश्चर्यचकित भी हुए हों ऐसी चीज़ को देख करके। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग क्लूज़। आपको क्लूज़ दिए गए हैं। विद होम, मतलब आप किसके साथ थे उस समय जब आपको बहुत खुशी हुई। व्हेन डिड इट हैपन, और ये कब हुआ, ऐसा कब हुआ। वाई, ऐसा क्यों हुआ। वेयर, ऐसा कहाँ हुआ। 3 लाइन्स गिवन है, आपको लिखना है कि आप किसके साथ थे और ये घटना कब हुई जिसको देखकर आप खुश थे, एक्साइटेड थे, सरप्राइज्ड भी थे। वाई, ऐसा क्यों था कि इस घटना में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आप बहुत खुश हुए, बहुत एक्साइटेड हुए, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए। एंड वेयर, और ऐसी घटना कहाँ हुई, किस जगह पर हुई, उस जगह का नाम बताएंगे। सो यू हैव टू राइट द सेंटेंस, यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑफ 5 sentences. Now, food for thought. When you have something serious to think about, then you have food for the thought. When you have something serious to think about, then you have food for thought. Here is some food for your thought. कहते हैं कि जैसा हम खाते हैं, जैसा हम पहनते हैं, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, हमारी सोच वैसी ही हो जाती है। तो हमें हेल्दी खाना चाहिए। हेल्दी खाना खाने से हमारी सोच हेल्दी होगी, पॉजिटिव होगी, और फिर हम एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एक्शंस ले पाएंगे। सो हियर इज़ सम फूड फॉर योर थॉट्स। टोमेटोज़ आर रेड, बीन्स आर ग्रीन। ठीक है, tomatoes are red, beans are green, the brinjal has a crown just like a queen, potatoes are brown, onions are pink, carrots have juice which I can drink, vegetables make me healthy and wise, so eat some daily with roti and rice. So this is your diet. Your diet should be very natural and healthy. Then only you can concentrate on your studies. You can concentrate on any activity you want to perform. Thank you.